Hello guys, so let's start with question number 13 in today's session. Sidpur Limited issued 6 lakh shares of 10 each at a premium of rupees 7 per share, 10 each at a premium of rupees 7 per share. The amount was payable as under 10, 4 and 3 including premium it is. Applications were received for 9 lakh shares, excess applications were rejected and money paid thereon was refunded, that is okay. Siddharaj, who was allotted 6,000 shares, did not pay money due on allotment and hence his shares were forfeited after allotment. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था सेम वे उसके शेयर्स forfeit हो गए after allotment itself. Jaisi, who was allotted 4,000 shares, did not pay money due on final call and hence his shares were forfeited after final call. Jaisi ने final call के पैसे नहीं दिए तो उसके final call के बाद हमने forfeit कर लिए. Allotment and final call amount was received on remaining shares. Company reissued 6,000 shares of Siddharaj at 7 per share to Minai and 4,000 shares of Jaisi at 6 per share to Rudra. तो सिद्धराज और जयसी दोनों के शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू करे, पर कब? एट द एंड, यानी कि सारी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद. नाउ दिस इज समथिंग न्यू. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर द शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट. दैट इज ऑल ओके. ऑल्सो प्रिपेयर शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट. हमें फॉरफीचर अकाउंट भी बनाना है. दैट इज ऑल गुड. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 विल बी देयर. सो ओवर हियर इशूड कितने हैं भाई, हमने इशू कितने करे हैं? 6 लाख शेयर्स वी हैव इशूड, राइट. 6 लाख शेयर्स एट रुपीज 10 + 7 ऑन एप्लीकेशन, ऑन allotment and on call we need to see, correct. So it will be 10, 4 and 3 and over here 3 + 7 विल बी देयर, क्योंकि हमें बोला गया है कि 7 रुपये का प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ही इंक्लूडेड है. चलो देन कुछ इस तरीके से आएगा. अलॉटमेंट पे 6,000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले और यहाँ पे ही क्या हो रहा है? फॉरफीचर हो रहा है. सो ओवर हियर just a moment. Yes, I'll be putting a line like this, correct. And then on call 4,000 शेयर्स पे फॉरफीचर हो रहा है. So I'll be putting a line like this, ताकि हमें दिमाग में रहे. दिस लाइन शोज कि भाई ओके फाइन ये फॉरफीचर हुआ है. चलो फाइन. एप्लीकेशन रिसीव्ड इज on 9 lakh shares, that is also okay. Now let's just start doing the sum. इतनी चीज़ें जो मेरे काम की थी वो मेरे को मिल गई है. Now no need to worry at all. So my first entry would be, as I am receiving the money, so bank account debit to equity share application account. How much? 9 lakh into 10 rupees, correct. So 90 lakhs that we have received. And then equity share application account debit to equity share capital account to security premium account, because premium is there in the application, right. So 9 and then to bank account also, क्योंकि हम बाकी के रिफंड कर रहे हैं ना excess application. So over here 6 lakhs into 3 rupees, correct. 18 lakhs, completely fine. Chalo then security premium is how much? 7 rupees. So 6 lakhs into 7, 42 lakhs, correct. और रिफंड कितना कर रहे हैं? 3 लाख शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं वो. सो 3 लाख into 10, so that is 30 lakhs. So it will be again 90 lakhs over here. Understood? Is it completely all right? Completely fine. यहाँ पे ऐसा बहुत ही easy था ये. चलो then third. चलो allotment ड्यू करो भाई, allotment के पैसे मंगवाओ. Equity share allotment account debit to equity share capital account. How much? Definitely 6 lakhs into 4,
24 lakhs completely fine. समझ में आ रहा है what am I doing? So 24 lakhs and 24 lakhs. And now the thing is, fourth entry, bank account debit to equity share allotment account. See here, there is no security premium, so it is quite easier as compared to the last sums, right? So 6 lakhs minus 6,000 shares पे पैसे नहीं मिले हैं into 4 rupees. So 24,000 माइनस कर देने हैं 24 lakhs में से. So 23,76,000. बिना कैलकुलेटर के भी ये करना इजी है. थोड़ा दिमाग दौड़ना चाहिए बस अपना, जो नहीं दौड़ता, आई नो दैट. सो 23,76,000. इज इट कम्प्लीटली फाइन? कहाँ से आया? 6,000 इंटू 4, 24,000 मैंने 24 lakhs में से माइनस कर लिए. दैट्स ऑल फाइन. चलो देन नेक्स्ट. अब फिफ्थ एंट्री क्या करनी है मुझे? फिफ्थ एंट्री करने से पहले आई नीड टू डू द वर्किंग. आई कैन सी द लाइन. लाइन मीन्स व्हाट? यहाँ पे ये क्या हो गया है? फॉरफिट हो गया है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और लाइन से मुझे पता चलेगा कि ओके फाइन, ये शेयर्स फॉरफिट हुए हैं. सो माई वर्किंग विल बी समथिंग लाइक दिस. 6,000 इंटू हाउ मच? 14 रुपीज. देन 10 रुपीज. नो. देन 3 and 4. याद करो प्रीमियम का अमाउंट दैट वी हैव ऑलरेडी रिसीव. उसको याद भी नहीं रखेंगे, लिखेंगे भी नहीं, देखना ही नहीं है. जस्ट चेक इट. देखना तक नहीं है. सो 7 रुपीज़ विल बी देयर. सो 6,000 इंटू 7. और क्यों मैम 7? क्योंकि हमने 3 तो मंगवाए ही नहीं है कॉल के, तो अभी उसको कंसिडर करना ही नहीं है. मंगवाए कितने? 3 + 4 7. सो वी आर सपोज टू फोकस ऑन दैट ओनली. सो 42,000. And then 2 parts. Once again, amount received, amount not received. Received कितना हो चुका है? 6,000 into 3, 18,000 that we have already received, correct. And over here allotment का पैसा नहीं मिला है. कितना? 6,000 into 4, 24,000 we have not received. So my entry will be like this. Fifth entry will be, just a moment. Yes, so my fifth entry will be like this. इक्विटी शेयर ऊपर का सब डेबिट करो, नीचे का सब क्रेडिट करो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 42,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 24,000 टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट 18,000. completely fine. now क्या ये फॉरफिटेड शेयर इशू हुए है? द आंसर इज नो. वो तो बाद में, तो अभी फॉरफिटेड ही है. फॉरफिटेड के फॉरफिटेड ही रहेंगे, राइट. हमने वो फॉरफिट कर लिए, ले लिए. तो अब एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे ना, तो ये फॉरफिटेड शेयर्स पे ड्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमने री इशू नहीं करे हैं. तो 6,000 शेयर्स तो अभी कंपनी के पास ही पड़े, उसके ऊपर वो कॉल मनी नहीं मंगवा सकती, राइट. सो हियर कंपनी विल कॉल फॉर द फाइनल कॉल रुपीज टू ओनली 6 lakhs माइनस 6,000 शेयर होल्डर्स, यानी कि 5,94,000 शेयर होल्डर्स को ही कंपनी मंगवाएंगी. उसके ऊपर फाइनल कॉल के पैसे अदरवाइज नहीं मंगवाएगी, करेक्ट. सो ओवर हियर माय सिक्स्थ एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू ये दिमाग दौड़ना चाहिए कि भाई ये रीश हुआ नहीं है तो डेफिनेटली उसके ऊपर फाइनल कॉल कैसे मंगवाई. जो शेयर्स ऑलरेडी मेरे पास है उसके ऊपर मैं थोड़ी फाइनल कॉल के पैसे मंगवाऊंगी, करेक्ट. सो 6 lakhs minus 6,000 into 3, correct. So 5,94,000 into 3, that is 17,82,000 it is. So 17,82,000, 17,82,000. now और एक 4,000 शेयर्स पे पैसे नहीं आए. So my entry will be bank account debit to equity share final call account. How much? ऑलरेडी 6 lakhs माइनस 6,000 शेयर्स थे, यानी कि 594,000 शेयर्स थे, माइनस 4,000 शेयर्स पे पैसे नहीं आए, इंटू 3.
सो 5,90,000 इंटू 3 दैट इज 17,70,000 ही मेरे पास आए। करेक्ट। और अब इसके 4,000 शेयर्स भी फोरफिट कर लिए हमने। सो माई एंट्री विल बी रादर माई वर्किंग विल बी लाइक दिस 4,000 इंटू 10 40,000। अब तो 10 ही रहेगा क्योंकि कॉल के बाद मैंने फोरफिट करा है। करेक्ट। सो ओवर हियर it will be 4,000 into 10 amount received, amount not received. So received will be how much? 4,000 into 4 plus 3, correct, 7, 28,000 एंड यहाँ पे कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है 4,000 इंटू 3 यानी कि 12,000। सो माई एंट्री इज अगेन वेरी इजी। ऊपर का सब डेबिट, नीचे का सब क्रेडिट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 12,000 टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट 28,000। कंप्लीटली क्लियर। चलो ये तो हुआ। अब क्या करना है? अब री इशू करना है। करेक्ट। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द थिंग? अब मुझे री इशू करते वक्त क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, अच्छे से समझना है इसको। हाँ, दो चीज़ें हैं। मैंने 6,000 वाले शेयर्स भी री इशू करे हैं और मैंने 6,000 शेयर्स भी री इशू करे हैं और मैंने 4,000 शेयर्स भी री इशू करे, लेकिन दोनों को अलग अलग प्राइस से री इशू करा है। तो समझना है अच्छे से वर्किंग नोट। 6,000 शेयर्स को मैंने रीइश्यू करा है 7 रुपये में, जिसकी प्राइस थी कितनी? 10 रुपये डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बाद में रीइश्यू करा है तो आई एम सपोज टू कंसिडर 10 रुपीज़। अगर मैं बीच में ही रीइश्यू कर देती तो मुझे अलग कंसिडर करना था। अंडरस्टूड? इन दिस केस वी आर सपोज टू कंसिडर 10 रुपी ओनली बिकॉज हमने एट द एंड रीइश्यू करा है। अंडरस्टूड? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लास्ट सम दैट वी डिड एंड दिस सम, राइट? सो 60,000 42,000। सो वन थिंग इज क्लियर, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 18,000 दैट विल गो फ्रॉम फोर फीचर बैंक एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना क्लियर है हमें? बहुत कर लिया मैम ये तो हमने। और 4,000 शेयर्स जो थे वो कितने रुपए में रीइश्यू करे? 6 रुपये में 24,000। अगेन उसकी वैल्यू कितनी थी? 10 रुपी। सो 40,000। कैन आई से जो बाकी के बचे 16,000 अगेन दैट विल गो टू फोर फीचर, rather not go to but that will be utilized from four feature. This is bank and this is equity share capital. Completely clear. So मेरी कुछ एंट्री इस तरीके से बनेगी, समझना अच्छे से। अब आई एम डूइंग इट ओवर हियर। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 42 and 24. So bank account debit 66,000. Equity share four feature account debit 18 plus 16. Correct. So total will be 34,000. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने के शेयर्स गए भाई? 60,000 and 40,000, 1 lakh. Completely clear, completely all right. And then equity share four feature account debit to capital reserve account. In this case we are supposed to do it in a combined manner. So कितना आएगा? फोर फीचर में कितना था भाई? 18 था। then ये रहा 28 था। 18 प्लस 28 था, जिसमें से 16 प्लस 18 34 चला गया है। सो योर अमाउंट दैट विल रिमेन विल बी in four feature account 12,000 rupees, right? So 12,000 and 12,000 completely fine. यहाँ पे सम ख़त्म नहीं होता है। What they have asked us to do is they have asked us to make a share four feature account that we need to make. जो हम बनाएंगे कुछ ऐसे। आपको थोड़ा सही स्पेस यूटिलाइजेशन करना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट? चलो फाइन। इक्विटी शेयर
फोर फीचर अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट, करेक्ट। सबसे पहला तो एंट्री कौन सी आएगी? मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोल सकती हूँ, जस्ट अ मिनट। डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड पे इट इज 18,000 ओवर हियर, एंड यहाँ पे भी कुछ थे 28,000, तो दोनों लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। फोर फीचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट साइड के पर्टिकुलर्स इफ यू रिमेंबर। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, रादर चलो मुझे सही से, आप लोग में भी भूल चुके हो तो ये गलती ना हो, बाय करके लिखना है। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 28,000। और डेबिट वाली एंट्री अभी अभी डाली ना, ये रही इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। सो इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट में डेबिट साइड पे ऑपोजिट साइड के पर्टिकुलर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 34,000 एंड यहाँ पे 12,000 है। सो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में सॉरी फोर फीचर अकाउंट में डेबिट साइड पे ऑपोजिट साइड के पर्टिकुलर्स, सो 12,000। सो टोटल कम्स टू 66,000 on both the sides. Sorry, 66 नहीं, 46,000 and 46,000 and it is tallied already. क्यों टैली हो जाता है पता है? द रीज़न इट इज़ गेटिंग टैलीड इज क्योंकि हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ गेटिंग टैलीड, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर सम एंड दिस पर्टिकुलर थिंग. It was easy but nice sum, nice concept to understand about this four feature account also. I hope you are clear with the same. Thank you.